Good morning, everyone. Today we are going to start question number 4, fourth part. Okay, and third part that you will try yourself. Third part is x is equal to 3 upon 5, y is equal to minus 6 upon 9, and z is equal to minus 7 upon 8. You have to verify the associative law of the addition of the rational numbers. Okay. Related to this, I am going to take fourth part. It is x is equal to minus 3 upon 5, y is equal to minus 7 over 10, and z is equal to minus 8 over 15. So for this you are going to verify that x plus y plus z, that is equal to x plus y plus z. Fine. So first we are going to solve the left hand side. So first step is to substitute the values. Minus 3 upon 5 plus, start the bracket, minus 7 over 10 plus minus 8 upon 15. Why I have taken this question? Because all the three numbers are negative over here. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. अब दोनों के दोनों नंबर आपके रेशनल नंबर्स हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है. सो आप इसको कैसे ऐड करेंगे? बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15. ठीक है. सो लेट अस फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 10 एंड 15. सो इट इज 2 5s are 10, 15 will be as it is, 3 5 will be as it is, 3 5s are 15, then by 5 and 1. So it is 5 3s are 15, 2s are 30. So LCM of 10 and 15 will be equal to 30. So minus 3 upon 5 will be as it is, plus, start the bracket, in your denominator it will be 30 equal to LCM. Now 10 के टेबल में 30 कब आता है? It is 3 times, multiply by numerator is minus 7. अब आई थिंक एलसीएम सभी को क्लियर होगा. ठीक है. 15 के टेबल में 30 आता है, 2 times, multiply by numerator is minus 8. Okay. Now further solve. Minus 3 upon 5 will be as it is, plus, start the bracket, 7 3s are 21, but 7 is of negative sign, it will be minus. Plus into minus will be minus. 2 8s are 16 upon 30. Close the bracket. Now next, minus 3 upon 5 will be as it is. माइनस और माइनस की टर्म आपस में प्लस होंगी, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस, बिकॉज बोथ द टर्म आर नेगेटिव. सो 6 + 1 is 7, 2 + 1 is 3 with negative sign upon 30. नाउ अगेन दोनों नंबर्स आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, दोनों आपके नेगेटिव है, मतलब दोनों को आप ऐड करोगे, लेकिन कैसे करेंगे? बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम और बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 5 and 30. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 30? यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. 5 and 30 का एलसीएम आएगा आपका 5 1s are 5, 5 6s are 30, 2 1s are 2, 2 3s are 6, एंड इट इज 3 1s are 3. सो इट इज 5 2s are 10, 3s are 30. ठीक है. सो इट इज 30. दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 30. अब 5 के टेबल में 30 कब आता है? 6 टाइम, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज माइनस 3, माइनस 30 के टेबल में 30 का आता है 1 टाइम, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 37. So again it is 6 3s are 18 with negative sign minus, minus 37 upon 30. Now next is माइनस और माइनस की टर्म क्या होंगी? प्लस. ठीक है. तो इन दोनों को प्लस करते हैं. न्यूमरेटर में आपके पास जो भी नंबर आएगा अब आपने उसको प्लस करना है. ठीक है. सो इट इज़ 15 अपॉन 30 विथ नेगेटिव साइन. ठीक है. अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें, इट कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 6s are 30. सो इट इज़ minus 11 upon 6. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा राइट हैंड साइड कितना आता है. सो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज x प्लस वाई प्लस जेड. सो x इज, स्टार्ट द ब्रैकेट, minus 3 upon 5 प्लस y is minus 7 upon 10 plus z is minus 8 upon 15. Okay, now next 5 and 10 का LCM कितना आएगा? Let us find out. 5 and 10 LCM will be 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, so it is 5 2s are 10. So LCM of 5 and 10 will be equal to 10. ठीक है. पहले हमें इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा विच इज़ इनसाइड द ब्रैकेट. सो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? इक्वल टू एलसीएम, दैट इज 10. 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज माइनस 3, प्लस 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज माइनस 7. ओके.
plus minus 8/15 will be as it is. Now 3 2s are 6 with negative sign, plus into minus will be minus, 1 7s are 7/10, okay, plus minus 8/15 will be as it is. Now नेगेटिव्स हैं दोनों, ठीक है, दोनों नंबर आपके नेगेटिव साइन के हैं तो दोनों को ऐड करेंगे. सो 6 + 7 इज 13, लेकिन आंसर में हमेशा साइन कितना आता है, माइनस का, ठीक है. एंड प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 8/15. नाउ 10 एंड 15, अब दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा. बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन, और आपको पता है अगर दो नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो दोनों को आप ऐड करते हो, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस, ठीक है. सो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया 10 और 15 का. 5 3s are 15, 2s are 30, मतलब आपका डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए अब, 30, ठीक है. सो 10 के टेबल में 30 आता है 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज -13, माइनस 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज +8, माइनस हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, ठीक है. सो इट इज़ 13 3s are 39 विद नेगेटिव साइन, 8 2s are 16, माइनस आपके पास ऑलरेडी था, 8 2s are 16/30. अब न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स आपकी नेगेटिव हैं तो दोनों को आप प्लस करेंगे, लेकिन साइन विल बी माइनस. 9 6 15 1, 3 + 1 is 4 + 1 is 5/30. स्टैंडर्ड फॉर्म, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 6s are 30, so it is -11/6. now see, both left hand side and right hand side are equal, ठीक है. that means your law, that is x plus y plus z, that is equal to x plus y plus z, it is verified. okay, so this was your complete question. क्वेश्चंस आर लेंथी, आपने एक एक पार्ट करके करना है. आपने ऐसा सपोज करना है कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. क्लियर. एलसीएम लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है. अगर एलसीएम आपने गलत लिया तो फिर क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा. तो एलसीएम को आपने ध्यान से फाइंड आउट करना है और उसी एलसीएम के इक्वल आपने डिनोमिनेटर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. अब सिंप्लीफिकेशन में अगेन जो भी आपके पास रैशनल नंबर्स गिवन होंगे आपने उनको सॉल्व करना है. सिंप्लीफाई का मतलब सॉल्व करना है, ठीक है. अब हमने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो हमने वहाँ पर दो केसेस डिस्कस किए थे. फर्स्ट, द एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, एंड सेकंड केस हमने डिस्कस किया था व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. अब यहाँ पर देखो आपके पास डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पर भी कितना है 10, यहाँ पर भी कितना है 10, मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है. तो हमारे आंसर में डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 10, और सिंपली आपने इन न्यूमरेटर्स को आपस में प्लस और माइनस करना है जो भी इनके बीच में साइन होगा, ठीक है. लेकिन फर्स्ट आपको चेक करना है क्या आपके सारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं. अब यहाँ पर देखो सेकंड नंबर में इट इज़ 12/-10, सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है. तो फर्स्ट आपने इसको कन्वर्ट करना है -3/10. जस्ट शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन टू द न्यूमरेटर, सो इट इज़ -12/10 plus 14/10. now -3/10 plus into minus will be -12/10 plus 14/10. अब जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आपके आंसर में डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, सिंपली 10, और न्यूमरेटर्स को आप जो भी उनके बीच में साइन है उसके अकॉर्डिंग लिख लो. अब इनको सॉल्व कर लो. अब देखो माइनस और माइनस की टर्म, पहले मैं इन दोनों नंबर्स को ले रही हूँ, ठीक है. माइनस और माइनस की टर्म आपस में क्या होती हैं, प्लस, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस, ठीक है. तो 12 + 3 इज इक्वल टू 15, बट साइन विल बी माइनस, प्लस 14 विल बी एज इट इज अपॉन 10. अब एक नंबर आपका पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मतलब आप दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है. तो 15 - 14 इज 1, बट ग्रेटर नंबर इज ऑफ negative sign, so in your answer there will be minus, upon will be 10. so what is your answer, -1/10. this is your answer. मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इस साइड को किया है. जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे आप इसको डाउनवर्ड्स करेंगे. क्लियर. सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड वन. Second question is now, see, over here denominator is 10, over here it is 13, and over here denominator it can be written as 8/1. now denominators are different. जब denominators different होते हैं तो क्या करना होता है,
we have to take the LCM of all the denominators. So let us find out LCM of 10, 13 and 1. So it is 2 5s are 10, 13 will be as it is 1 क्योंकि 2 के टेबल में 13 नहीं आता है, ठीक है. Then it will be by 5, 13 will be as it is क्योंकि 5 के टेबल में 13 नहीं आता है. Then it will be by 13, ठीक है. Now 5 2s are 10 into 13, 13 10s are 130. So LCM of these three numbers is equal to 130. तो इस 130 का क्या मतलब हुआ, that in your denominator LCM और denominator should be equal to LCM which is equal to 130. अब 10 है यहाँ पे, 10 के टेबल में 130 कब आएगा, मतलब कितने 10 टाइम्स 130 होता है. अगर आपको ये पता नहीं लग रहा है तो सिंपल सी ट्रिक है, आप 130 को 10 से डिवाइड कर दो. सो 10 1s are 10, 3 दिस 0 will come down, ठीक है, एंड 10 3s are 30, रिमाइंडर इज 0, मतलब 10 विल बी मल्टीप्लाइड विद 13. ओके, तब आएगा आपके पास 130, ठीक है. बट ये सिंपल है, 10 के टेबल में 130 आता है 13 टाइम्स, ठीक है. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज -5 प्लस 13 के टेबल में 130 कब आता है, 10 टाइम्स. यहीं से देख लो, 13 के टेबल में 130 कब आएगा, 10 टाइम्स. ओके, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 6 प्लस 1 के टेबल में 130 कब आएगा, 130 टाइम्स आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 8. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, just multiply all the numbers. 13 5s are 65, one number is negative, so in your answer there will be minus, plus 10 6s are 60. डिमास रूल यूज करना है अब आपने, ठीक है. डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है. मल्टीप्लाई और एडिशन आ रहा है ना, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है. एंड ओवर हियर इट इज 13 8s are 10 विल बी देयर, ठीक है. 104 upon 130. Now just add these two numbers. दोनों प्लस के हैं ना, तो इनको प्लस करना इजी है. -65 प्लस 1040 प्लस 60 1100 अपॉन 130. इन दोनों को, दोनों प्लस के हैं तो दोनों को आप प्लस करोगे, तो प्लस करने पर आपका कितना है 1100, हमने लिख दिया. नाउ वन टर्म इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव, तो दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस. सो सब्ट्रैक्ट 65 फ्रॉम हियर, सो इट इज 10 9 0. सो इट इज 10 - 5 इज 5, 9 - 6 इज 3, ओवर हियर इट इज 0, ओके, एंड इट इज 1. सो इट इज 1035 अपॉन 130, ओके. और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी आई थिंक 5, इट विल बी डिविजिबल बाय 5. सो इट इज़ 5 2s are 10, 3 5 6s are 30 एंड 5 2s are 10, 0 5 7s are 35. सो इट इज़ 207 अपॉन 26. सो दिस इज योर आंसर, ठीक है. मैंने इसको 5 के टेबल से कैंसिल किया है, आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन यूज़ कर लेना, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना, इन 7th क्लास. सो इट इज़ 130 को 5 से करेंगे डिवाइड, 5 2s are 10, 3 0 5 6s are 30 0. तो देखो 130 को जब आपने 5 से डिवाइड किया कितना है, 26, ठीक है. उसी तरह से 1035 को भी मैंने 5 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर आएगा 207. ओके. Now let us take one more question, that is 4th part. 5 over 36 minus 7 over 8 plus 6 over minus 72 plus minus 3 upon minus 12. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए just see the denominator, all are different, but over here it is negative. First make it positive. 5 over 36 plus into minus will be, let us make it minus 7 upon 8. Shift this negative sign to the numerator, minus into plus will be minus 6 over 72, minus will cancel with minus, plus 3 upon 12. Now कैसे ऐड करेंगे इन सभी नंबर्स को, LCM ऑफ 36 8 72 एंड 12. सो LCM कितना आना चाहिए, 36 8
72 and 12. So it will be by 2. 2 18s are 36, 2 4s are 8, put a dash. Okay, 2 3s are 6, 1, 2 6s are 12, 2 6s are 12. Okay, now again by 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 18s are 36, then 2 3s are 6, then again by 2, 9, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 3, then by 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, then again by 3. So what is the LCM? 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 36 2s are 72. सो एलसीएम कितना है इन सभी नंबर्स का? 72. मतलब आपके आंसर में नाउ इट शुड बी 72. अब 36 के टेबल में 72 कब आता है? 2 टाइम्स. अगर आपको पता नहीं लगता है तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लो. बट 36 2s are 72 होता है. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 5 माइनस 8 के टेबल में 72 कब आता है? 9 टाइम्स. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 7 माइनस 72 के टेबल में 72 आता है 1 टाइम. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 6 प्लस 12 के टेबल में 72 कब आता है? इट इज 6 टाइम. मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 3. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई 2 5s are 10 minus 63, 9 7s are 63 minus 1 6 are 6 plus 6 3s are 18 upon 72. Now just take these two numbers. 10 minus 63, एक आपका प्लस का एक माइनस का है, तो आप माइनस करोगे सो इट इज़ 53. बट ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? 63 का माइनस. तो आंसर में भी क्या है? माइनस. माइनस 6 एज इट इज़ प्लस 18 एज इट इज़ अपॉन 72. नाउ नेक्स्ट स्टेप में दोनों नंबर्स, अब इन दोनों नंबर्स को लो फिर से. माइनस और माइनस आपस में प्लस होंगे लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस. सो इट इज़ माइनस 59 प्लस 18 अपॉन 72. ठीक है, अब एक टर्म आपकी नेगेटिव है, एक प्लस है, तो दोनों को आप माइनस करेंगे, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन अगेन क्या है? माइनस. तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस. नाउ 59 माइनस 18 इज 9 माइनस 8 इज 1, 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 72. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, दिस वॉज द कंप्लीट सोल्यूशन. एंड थर्ड पार्ट, दिस पार्ट, this you will try yourself. Clear? So that's all. Thank you.